Good morning students. 11th Science English Medium Lesson 8 Gravitation. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक अपने पास है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. स्टूडेंट्स, इसके पहले के टॉपिक्स में थोड़ा सा उसको रिपीट करते हुए हम हमारे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. हमने हमारी पहले की क्लासों में काफी बार हमने सैटेलाइट के बारे में डिस्कस भी किया है. सैटेलाइट होती क्या है? स्टूडेंट्स, आपने किसी अर्थ सरफेस से किसी भी जगह से किसी एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की ओर थ्रो किया, फेंका, और वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में उस अर्थ के या सन या मून या किसी भी कंडीशन में वो उसके अराउंड चक्कर लगाता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है. तो इस कंडीशन में उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड बनेगी, वो एनर्जी उसकी क्या होगी, उस एनर्जी को आज हम हमारी इस वीडियो में फाइंड आउट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, हम पहले ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ सबस्टेंस. सपोज सबस्टेंस, जैसे कि अपन पहले लेसन नंबर 4 में 5th में 6th में अपने पढ़ा भी है. सबस्टेंस, पार्टिकल, सैटेलाइट, ये सब यहां पर अपने पास बनेगा. तो हम जनरल कह सकते हैं द टोटल एनर्जी of satellite is the sum of kinetic energy which denoted by K and potential energy which denoted by U. So implies that E is equal to K plus E. Equation number 1. Here we assume that mass of Earth ME and we want to set a satellite a particular distance RE plus H, where the mass of satellite small m which are around of revolve Earth in particular orbit. Then kinetic energy K is equal to half mv square, and potential energy which denoted by U is equal to minus capital G capital M small m upon R. Students, here we have R is equal to RE plus H, and capital M is the mass of Earth, small m mass of satellite. Equation 2. From equation 1 and 2, E is equal to, put the value of K, half m v square plus minus capital G capital M small m upon R E plus H. Implies that half m v square plus minus capital G M E small m upon R E plus H. Equation 3. Students, equation 3 represent to total energy of satellite. Students, शॉर्ट में दोबारा से एक बार मैं इसको और रिपीट कर देता हूं आपको. Here we want to find the total energy of satellite which place at the height h from the earth surface. So we assume that a small m is the mass of satellite which place at the height of earth h and revolve with the speed v around of earth. और सन भी हो सकता था स्टूडेंट्स. यहाँ पे in this the total energy of the satellite is the sum of
kinetic energy and potential energy, then E is equal to K plus U. Here we know that kinetic energy K is equal to half mv square and potential energy U is equal to minus capital G, capital M, small m upon R plus H. Put the value of equation 1 or 2, then we get E is equal to half mv square plus minus capital G, mv, small m upon R plus H. Already know that V square is equal to root Gm upon Re plus H. Sorry, V equal to, then implies V square is equal to root नहीं होगा Gme upon Re plus H. Equation number 4. From equation 3 and 4, E is equal to 1 upon 2 m capital G me upon Re plus H minus capital G me small m upon Re plus H. Common unit capital G me small m upon Re plus H, and remaining part 1 upon 2 minus 1. 1 upon 2 less minus 1, E is equal to minus half capital G me small m upon Re plus H. It is the formula of total energy of a satellite which is placed at the height of Re plus H from Earth surface. Now here we get total energy E is equal to negative sign represented the satellite. When we set the satellite in a particular orbit, we give some amount of energy. Then after this energy, this satellite are placed in a particular orbit and revolve of Earth. Students, इस टॉपिक में आपने केवल टोटल एनर्जी के बारे में गेन किया है कि एक सैटेलाइट को जब आप अर्थ से ट्रांसफर करते हैं तो वो अपने साथ कितनी एनर्जी को कंजर्व करके एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और उसके बाद यदि आप उस सैटेलाइट को उस अर्थ ग्रेविटी से आउट करना चाहते हैं तो आपको इतनी ही एनर्जी इसको प्रोवाइड देनी पड़ेगी या इससे रिलीज करनी पड़ेगी। जैसे ही एनर्जी आप इससे रिलीज करेंगे तो ये दोबारा से अपनी इस एनर्जी को जीरो करेगा, और जीरो करते ही ये अर्थ टोटल जो एनर्जी है ये जीरो बना देगा, और जीरो होते ही ये सरफेस से एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से फ्री हो जाएगा, और जहां भी आपको इसको प्लेस करना है वहां पर आप इसको प्लेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक और पॉइंट आपके पास छोटा सा बनता है। यहाँ पे कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि एनर्जी आपको जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देता है, तो दोनों का ट्रांसफर किस तरह से आप करेंगे, आप याद रखिए कि यदि आपको जूल में दे रखा है और आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 का आपको डिवाइड करना होगा, जिससे यह कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, और यदि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन वैल्यू होती है तो आप इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने पास आज का जो टॉपिक अपने पास रहा टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, जिसको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। और स्टूडेंट, जैसा कि हम हमारी बार बार क्लास में आपको बोलते हैं कि आप वीडियो को देखकर अपनी फेयर कॉपी में इन टॉपिक्स को लिखें, और हम कभी भी आपसे इस कॉपी को चेक करने के लिए आपसे मंगवा सकते हैं। और आप अपना वर्क कंप्लीट रखिए, वीडियो को देखें, और कमेंट में आप ये भी सबमिट करते रहें कि आपने वीडियो देखी है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद स्टूडेंट्स।